Hi everyone, welcome back to the channel. Today we are making this adorable crochet lavender bouquet. It's beginner friendly, takes only 10 minutes to make, and I'll guide you through every step in the easiest possible way. So grab your yarn and crochet hook and let's get started. So to make this lavender, what you need is one purple yarn, one green yarn, and your crochet hook. Here I'm using 2.5 millimeter crochet hook. Then you need a pair of scissors, some wooden sticks. मैं ये यूज़ कर रही हूँ जो किचन में खाना बनाने में यूज़ होती है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेड़ से भी तोड़ सकते हैं. एंड आई एम यूजिंग अ ग्लू. आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू है आप वो यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास यही है, इससे सही काम चलता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. सो लेट्स बिगिन. व्हाट यू हैव टू डू is take your yarn, hold it like this, make a slip knot this way and chain 36. To make a chain, what you have to do is hold the hook in your dominant hand, hold the thread like this and take the thread above your hook. It will look like this and pass it through. This is your one chain. You have to repeat this process 36 times because we need 36 chains. Do it like this. Yarn over and pass through, yarn over and pass through, yarn over and pass through. Make 36 chains and I'll meet you at the end. So here I've made 36 chains. You can see how it looks. अब आपको क्या करना है, जो यहाँ से आप काउंट करोगे और यहाँ से काउंट करते करते जो आपकी 8th चेन होगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is your 8th chain. Insert your hook in the 8th chain, pull up a loop and make a slip stitch. स्लिप स्टिच में क्या करना है आपको, ये जो आपका पहला लूप है उसको प्रीवियस लूप से पास थ्रू करवाना है. ओके, यू सी इट लुक्स लाइक दिस. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 5 चेन्स. 1 2 3 4 and 5. Now you have to make slip stitch again in the next stitch. और यही पैटर्न आपको बनता जाएगा. एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे यू कैन मेक अ लैवेंडर, आई एम टेलिंग यू. Repeat the process, make 5 chains, 2 3 4 5. We have made 5 chains. Then make a slip stitch in the next stitch. 1 2 3 4 5. Make a slip stitch in the next stitch. इस तरह का कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको, और यही आपको कंटिन्यू करना है टिल योर लास्ट चेन. ओके, आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखो एंड मीट यू इन द एंड. Slip stitch. You can see at the end it will look like this. Trust the process, it will look fabulous at the end, I promise you. और ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला आपने स्लिप स्टिच बनाया है वहाँ पे यू हैव टू चेन 1. चेन 1 करने के बाद जो ये लेटर हाफ है इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए एंड पुल दिस आउट, टाइटन दिस अप. यहाँ पे हमारे 2 थ्रेड हैं, एक जो हमने स्टार्ट करा था और एक जहाँ पे हमने एंड करा है. अब इन दोनों को हम अंदर सीव कर देते हैं. आई शो यू इट. आपको ये नीडल लेनी है, ये थ्रेड आपको इसके अंदर डालना है लाइक दिस वे एंड पीछे की साइड से सीव इन करना है हमें. लाइक दिस. और फिर इसके बाद हम दूसरे वाले को भी करेंगे.
and sew this in. And after doing this, we will cut the ends of the yarn. And now it looks perfect. Now let's make the leaf for the lavender flower. What you need is green yarn. Take your crochet hook, make a slip knot this way, make a slip knot. Now chain 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. जो आपको चेन दिख रही हैं सबसे ऊपर वाली, ये वाली, इसको आपको स्किप करना है, और जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें आपको हाफ डबल क्रोशे बनाना है. हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न ओवर करिए, चेन के बीच में अपना हुक इंसर्ट करिए, yarn over and pull up a loop. You will have 3 loops on the hook. Yarn over and pass through these 3 at the same time. We have to make 5 half double crochets in the next 5 chains. Do the same process, yarn over, pull up a loop and pass through all of these at the same time. Do it one more time. Yarn over, pull up a loop and pull through all the 3 at the same time. Yarn over, pull up a loop and pass through. We have made 1, 2, 3 and 4. Let's make our last half double crochet. And we have to make 4 single crochet in the next 4 chains. Let's make it. 4 single crochet, 1, 2, 3 and 4. This is how it will look. This is the row 1. Now for the row 2, you have to chain 2 चेन 2 करने के बाद आपको क्या करना है, जिस चेन में आपने अपना लास्ट सिंगल क्रोशे बनाया है उसी चेन में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है. स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं, इस तरह से, ओके. और फिर उसके बाद आपको इस वाले चेन में ही जिसमें आपने स्लिप स्टिच बनाया है उसमें अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाना है. Then next chain, make the next single crochet. अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी चेन के ऑपोजिट साइड में वर्क कर रहे हैं. पहले हमने चेन के इस साइड में वर्क किया था. नाउ वी आर वर्किंग इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द चेन, दिस साइड ऑफ द चेन, ओके. 2 सिंगल क्रोशे हो गए हैं, 3, 4. नाउ दिस, एंड जैसे जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे ना, यार्न टेल को हम साथ में इसमें बीच में हाइड करते रहेंगे. 3rd सिंगल क्रोशे, नाउ द 4th सिंगल क्रोशे. Just like that. Now let's make the 5 half double crochets. Go in the yarn chain space, pull up a loop. You will have 3 loops on the hook.
pass through all of them at the same time and repeat the process 4 more times. In total we need 5 half double crochets. 2, 3, 4, 5. स्टार्टिंग में 4 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद और लास्ट में 5 हाफ डबल क्रोशेस बनाने के बाद आपकी लीफ कुछ इस तरह से लगेगी। अब आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट में आपको टॉप में एक यार्न लूप दिख रहा है, इसके अंदर आपको अपना हुक इंसर्ट करना है, yarn over and pull up a loop, and now you have to slip stitch. Now it looks like a leaf, right? Now make a chain, cut the tail, pull it out and tighten it up, and it makes our first leaf. You can make it as much as you want. I will make 2 leaves in total. तो अब आपको क्या करना है, ये जो वुडन स्टिक्स हैं सारी तीनों स्टिक्स पे आपको जो आपकी ग्रीन यान है ग्लू की हेल्प से आपको इसे रैप करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इस तरह से आपको पकड़ना है कि पीछे यान होनी चाहिए और आगे स्टिक। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ग्लू लगाओगे अच्छे से, एंड देन स्टार्ट रैपिंग, देन स्टार्ट रैपिंग इट। Like this way, wrap it around. अच्छे से आप रैप करिए इस तरह से, एंड एंड में उसे कट कर दीजिए। चिपक जाएगी और फिर ये खुलेगी नहीं। अगर ये जैसे थोड़ी आपको लग रही है कि खुल सकती है तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको एंड जो आपका एंड वाला हिस्सा है वहाँ पे आप इसे चिपका देंगे। देखो बिल्कुल असली प्लांट की स्टेम लग रही है ये। ऐसे ही हमें बाकी 2 के साथ भी करना है। मैं करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपकी ये स्टिक रेडी है, आपका लैवेंडर क्रोशे पैटर्न है वो रेडी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन सबको असेंबल करना है। यहाँ पे से आप इसे स्टिक करोगे और इसे रैप करते रहोगे अलॉन्ग दिस वे। मतलब ये जहाँ जो आपकी चेन वाली लाइन है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये चीज़ आपको रैप करनी है। और जो ये रफल पैटर्न है ये लैवेंडर फ्लावर का लुक देगा आपको। ठीक है, मैं आपको ग्लू से करके दिखाती हूँ फाइनली। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि जब आप अपनी लीफ को रैप कर रहे हो ना, आपका यार्न जो है वो इस साइड रहेगा और लीफ इस साइड रहेगी फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करो कि यार्न को लीफ के नीचे वाली साइड पे ले आओ पहले, तो यार्न पीछे आ जाएगी। अब पीछे से क्या करो, उसे आगे ले आओ, तो इस तरह का आपको दिखेगा। और फिर उसके बाद उसे घुमा के रैप कर दो। इससे क्या होगा, लीफ जो है ना जो नॉर्मली आपके ऐसे गिरती रहेगी वो गिरेगी नहीं। ठीक है, इस तरह से मैं इसे ग्लू करके दिखाती हूँ। लुक एट दिस, I mean look at this, how can something look so beautiful? See, so this is the final look. You can see this looks absolutely beautiful, and make this for yourself. Let me know in the comments how do you like the video, and if you have any suggestions in regard to this video, please drop it down in the comments below. I would love to hear it from you, and please like, share and subscribe for more such videos, and I'll see you in the next one. Bye.